Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will continue chapter number 6 of civics, that is gender. This is the lecture number 2 of this chapter. In the previous chapter we studied about the two terms, that is sex and gender, and we also studied about the various stereotypes that are created by our own society. Today we will continue some other topics from the same chapter. So first of all, we have gender inequality. Now, what is gender inequality? It means the difference in the status of males and females. Now, if you can see, here it's not written difference between male and female. Because अगर हम male और female के difference की बात करें, तो वो sex में जाएगा. यहाँ पर क्या है? मेल और फीमेल के स्टेटस में जो डिफरेंस है, एंड दैट स्टेटस इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, because the role of the men and the women is decided by the society in our country, and this is considered in the term gender. So whatever the difference is there between the males and females, between the status of males and females, that is known as gender inequality. एंड हमारी सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज के जो रोल्स हैं, दे आर प्री डिफाइंड. गर्ल्स दे कैन डू दिस थिंग but they can't do this thing. Similarly for boys. So the status is predefined, and because of that, there is difference between the status of males and females, which is known as gender inequality. And this is a very big barrier, a great barrier in the economic development of our country, in the social development of our country. बिकॉज जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं है, सबको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आज भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो एजुकेट नहीं हैं, तब तक हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तब तक हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती. अंडर पेट्रियार्की. नाउ व्हाट इज पेट्रियार्की? पेट्रियार्की इज दैट सोसाइटी वेयर द डोमिनेशन ऑफ मेल इज देयर, male dominated society. And in our country, that is India, there is a patriarchal society everywhere. Means the society is male dominated. जब फैमिली का सबसे एल्डर जो मेल होता है वो हेड होता है, दैट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें जो सीनियर मोस्ट फीमेल है उसको अगर आप हेड कंसीडर करते हो, देन दैट विल बी female dominated society. If the senior male is the head of the family, then that will be patriarchal society, that is male dominated society. So in our country, that is India, under patriarchy, the birth of a girl child is considered as a curse. अब हमारी कंट्री में अगर गर्ल का बर्थ होता है तो व्हाट वी कंसीडर इट एज अ कर्स. बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज. Each and every family does not consider girls as the same, but still in some families, girls are considered as a curse. Why it is so? क्यों उसको वरदान नहीं माना जाता, अभिशाप माना जाता है? Because in our country there is a system to give dowry. आपको मैरिज के बाद दहेज देना पड़ता है. गर्ल्स की सेफ्टी का इशू है. गर्ल्स आर नॉट एट ऑल सेफ इन आवर कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द पेरेंट्स दे आर वेरी मच अफ्रेड इफ द गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, बिकॉज गर्ल्स का जो सेफ्टी का इशू है वो बहुत बड़ा कंसर्न है. सो गर्ल्स को कर्स माना जाता है. विमेन आर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज. ये सारे आपको जेंडर इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल्स यू कैन से, बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है उसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू roles, that is the role of men and the role of women. So women are confined to domestic activities. जो women है उनको domestic activities करनी है. This we have discussed in the previous lecture also, and this is considered that the woman is weaker sex and the males are physically stronger. It is expected कि जो एक girl है वो क्या करेगी? Cooking, cleaning, looking after the young ones, looking after the old people of the family. That means all the household chores. हाउसहोल्ड वर्क गोज अनपेड एंड अनरिकग्नाइज्ड. उसकी कोई पेमेंट नहीं है, उसकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है. इट इज कंसीडर्ड कि जो भी एक वर्क वुमेन करती है 24/7 घर में, दैट इज अनप्रोडक्टिव. ऑल्दो इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, एनर्जी कंज्यूमिंग ऑल्सो, बट स्टिल दैट वर्क इज कंसीडर्ड वेरी मच अनप्रोडक्टिव. Women are often deprived inheritance right. Inheritance means अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो वो किसकी होती है? सन की होती है. इनहेरिट करते हैं, जो हम अपने एंसेस्टर से इनहेरिट कर रहे हैं. अगर हमारी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो किसको मिलेगी? फैमिली की किसी भी हेड की है, मेल मेंबर की है, या किसी भी एंसेस्टर की है, तो उनके जितने भी सन्स हैं उनमें डिवाइड होगी.
वुमेन को इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता. दैट मीन्स जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें वुमेन को राइट नहीं मिलता. बट दिस इज ऑल्सो नाउ अ डेज नॉट द केस. आफ्टर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, दिस इज नॉट गिवन इन दिस बुक, बट आफ्टर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में एक एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. इस एक्ट के बाद अ गर्ल कैन ऑल्सो क्लेम द राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर और इन द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. In many instances, women are harassed physically and mentally. कुछ फैमिलीज में अगर गर्ल्स उनका मेल मेंबर का ओबे नहीं करती हैं तो उनको फिजिकल हरासमेंट भी दिया जाता है. दैट मीन्स उन्हें मारा जाता है, डराया जाता है. एंड दे गिव अप गुड करियर्स फॉर चाइल्ड केयर. और इन फ्यूचर सपोज अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और अगर उनका जो चाइल्ड है, बेबी है, वो छोटा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो वुमेन है वो अपना करियर सेक्रीफाइस करती है. बहुत रेयर फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि अगर यंग वन छोटा है और आपको उसका ध्यान रखना है तो हस्बैंड जो है वो अपनी जॉब छोड़ दे. नो, वो अपनी जॉब कंटिन्यू करेगा और जो लेडी है वो जॉब छोड़ देती है. सो वुमेन हैव टू गिव अप देयर करियर्स फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड केयर. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ इनइक्वालिटी एंड discrimination. The Constitution has granted equality to all Indian citizens regardless of caste and gender. बट इस सब को रिमूव करने के लिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी दी गई है ऑन द रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड जेंडर. नो मैटर आप किस कास्ट के हो, किस जेंडर के हो, ऑल द पर्सन्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट. रादर ऑल द एडल्ट सिटीजन्स एज वेल एज ऑल द non-adult citizens all have been given equal rights according to our Indian Constitution. But the government has realized the need for intervention for this equality to be implemented. गवर्नमेंट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वालिटी हो गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं मिली. सपोज एक कंपनी है, अब कंपनी में कुछ नंबर ऑफ जॉब्स हैं, कोई भी पर्सन है वो अपनी मर्जी से हायर कर रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, अपनी मर्जी से किसी भी कास्ट के या किसी भी जेंडर के पर्सन को दे पीपल कैन हायर एंड दे कैन से कि ठीक है हमें ये पर्सन जो है वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं लगा, हमने जॉब नहीं दी. तो मे बी कहीं ना कहीं इक्वालिटी अफेक्ट हो. सो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कैसे किया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया दैट 33% ऑफ द सीट्स आर फिक्स्ड फॉर द वुमेन. कि आपकी जितनी भी सीट्स हैं, सपोज आपने जॉब्स देनी है या सीट्स देनी है, जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 33% यू हैव टू गिव टू द वुमेन. इससे क्या होगा, इफ यू हैव टू गिव 100 जॉब्स देन आउट ऑफ 100 यू विल गिव 33 टू द वुमेन. तो इससे इक्वालिटी होगी, वुमेन को वर्क मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. So government has taken many steps. For example, the government has encouraged education of girl child. It has given various incentives to the girls, opened various Anganwadis or child care centers, extended maternity leave. Maternity leave is for the women if they are expecting a child so that they can take the leave and after that period they can again join their work. The government has made it mandatory for the organization with 30 or more women to have crutches. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा वुमेन वर्क करती हैं तो गवर्नमेंट ने ये कंपल्सरी कर दिया दैट दे विल ओपन अ क्रच. अब क्रचेस क्या होते हैं, जहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाता है. सपोज एक लेडी है और जो उसका बेबी है वो छोटा है, दैट मीन्स उसको मदर की केयर की रिक्वायरमेंट है. तो टिल द टाइम उस बेबी को रिक्वायरमेंट अपनी मदर की है, वो मदर जॉब नहीं कर सकती है. सो गवर्नमेंट ने क्या करा, इफ द 30 और मोर वुमेन्स आर देयर देन अ क्रच विल बी देयर. अब क्रच क्या होगा, जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, वहाँ पर a lady will be there or a male will be there and he or she will take care of the children of those women who are working in that particular organization. Government has also passed many laws for the same purpose. The first law is Dowry Prohibition Act. Under this act, dowry taking is a punishable offense. अगर कोई किसी को फोर्स करता है, अपनी चॉइस से कोई पेरेंट अपनी डॉटर की मैरिज में कुछ देना चाहता है, दैट इज ओके. लेकिन अगर जो बॉय की फैमिली वाले हैं वो फोर्स करते हैं, ओके वी नीड दिस मच अमाउंट एज अ डाउरी क्योंकि हम आपकी बेटी से शादी कर रहे हैं, तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. वो एक क्राइम है और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. दिस इज डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट. प्रोहिबिशन मीन्स रोकने के लिए, प्रोहिबिट करता है डॉरी को. A National Commission of Women has been set up. 1992 में एक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाई गई थी जिसका पर्पस क्या था कि वुमेन के अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं या वुमेन का हरासमेंट हो रहा है उसके लिए ये वर्क करेगी. अंडर दिस नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम
and special schemes for single girl child have been launched. इसमें काफ़ी सारे सिंगल स्कीम्स स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई जिसके अंडर अगर एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है मीन्स एक पेरेंट की पेरेंट्स की अगर एक ही चाइल्ड है एंड दैट इज़ अ गर्ल तो उसके लिए एजुकेशन के लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए. एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए मीन्स कुछ चेंजेस किए गए और 1992 एंड 1993 में ये चेंजेस हुए थे जिसके अंडर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी जितनी सीट्स होंगी उसका जो 33% होगा वो किसके लिए फिक्स हो गया, वुमेन के लिए. लास्ट चेंज डन बाय द गवर्नमेंट इज Hindu Marriage Act 2005. This we have discussed earlier also. I told you Hindu Succession Amendment Act 2005. Under this act, a woman can claim the right in the ancestral property. Means a woman have been given equal right to inheritance of property. अगर उसके फादर की कोई प्रॉपर्टी है या एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी है जिस पर पहले से फैमिली के मेल मेंबर्स दैट इज सन्स का राइट होता था, अब एक फैमिली की डॉटर भी उसमें अपना राइट क्लेम कर सकती है. अगर विलिंगली उसको क्लेम नहीं चाहिए दैट इज ओके, लेकिन अगर वो क्लेम करती है तो नो वन कैन डिनाई हर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर और द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी.